Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to JIV CIV Prep. Guys, in this particular session, we are going to talk about our unit number 15, which is all about company account 2. Okay. So, in our previous session, where we generally done with the company account 1, again, these two units are very important from this particular module. Okay. So, you cannot ignore any part of this particular, basically, these particular. Units. Okay, so back to back आपका एक तो we have limited session from limited unit from module B and all the units are very important. ठीक है, so especially I'll mark again. So मैंने आपको starting में भी बताया था. ठीक है, so balance sheet equation, preparation of final accounts, company account 1, company account 2, cash flow and final accounts. Okay, so these back to back sessions are very important and they are interlinked. Okay, अगर आप इनको यहाँ से follow करें तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं. ठीक है, so today in this particular session we are going to talk around our unit number 15 AFM. So which is all about company account 2. ठीक है, so company account 2 which is something related to form of balance sheet. Then we have impact of Indian accounting standards on financial statements. So देखने में बहुत कम सब टॉपिक दिखते हैं, but like they have defined the entire journey like balance sheet, profit and loss accounts, or the other areas also. ठीक है, so with the help of questions, we already done with the theoretical aspect of this particular unit. Now with the help of questions, we will be understanding. We'll try to build our understanding toward the these particular concept and what kind of question they were part of the previous examination and what type of question you may expect in upcoming examination. Okay, तो स्टार्ट किया जाए एक बार जल्दी से सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें सो दे कैन आल्सो टेक एडवांटेजेस ऑफ दीज पर्टिकुलर क्लासेस. ओके, so we will start our today's session with very first question on your screen, guys. We have like this session will be around 1 hour or more than 1 hour because these are the topics जहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा है आप लोग थोड़ा लैग करते हैं. सो आई वांट कि जैसे जो भी टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से डिटेल में आपका समझा जाए. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. In case of limited companies, dash section that make it compulsory for a company to keep certain book of accounts and dash section govern the preparation of final accounts. If you remember, अगर आपने previous classes आपका attend किए होंगे, you will be able to answer this particular question. Okay, so they are as per Companies Act 2013, section 128, which generally direct companies they have to prepare certain accounts. Okay, so like their final accounts will include profit and loss account, then we have balance sheet. Okay, balance sheet and cash flow statement. Okay, this is in accordance with आपका the accounting standard 1 as well as Indian accounting standard 1. So whenever we talk about the final accounts of a company, it includes these three reports. Okay, so section 128 जहाँ पे ये mandate किया गया है कि you have to have prepared these particular accounts at the end of the accounting period. How you will prepare, that is given under section 129. Okay, so the format of these particular accounts which is given under this. So ये आपका, so what will be your correct answer? Section that make compulsory for company to keep certain book, that is 128, and dash section means section 129, that preparation of final accounts of a company, right? So these are two major sections. In case of a banking company, if it is about the banking company, ठीक है, तो banking company किस में बनता है जो हम अगले उसमें पढ़ेंगे. So it is section 29 of our बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, यहाँ पे आरबीआई के द्वारा फॉर्मेट दिए गए हैं इन टर्म ऑफ फॉर्म ए विच इज रिलेटेड टू परफॉर्मा बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट एंड फॉर्म बी विच इज रिलेटेड टू परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो कितने शेड्यूल में आपका ये डिफाइन किया गया है? Under 18 schedule, 12 schedule for balance sheet and 6 schedule including note to account for profit and loss account. ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. So in case of a limited company, it is compulsory to prepare profit and loss account and its balance sheet every year.
under the Companies Act 2013, Section 128 make it compulsory for a company to keep certain book of accounts, while Section 129 govern preparation of final accounts. This section state that financial statements shall give a true and fair view of the state of affair of a company, comply with the accounting standards under section 133, and shall be the form or form any as may be provided for the different class or classes of companies under schedule 3. तो schedule 3 of Companies Act 2013, जिसके according से आपका companies they have to prepare this particular documents. ठीक है. So provided further that nothing contained in the subsection shall apply to any insurance or banking company or any company engaged in the generation or supply of electricity or any other class of company or which form the financial statement as has been specified in or under the act of governing such classes and all. ठीक है, तो जिसमें आपका बैलेंस शीट सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी विच इंक्लूड बैलेंस शीट एज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, a profit and loss account, or in case of a company carrying or any activity not for profit, an income and expenditure account for the financial year, cash flow statement for the financial year, statement for changes in equity if applicable, any explanatory note annexures, or the next one is sub clause, provided that the financial statement with respect to one person company, small company or dormant company may not include in this, but they include the cash flow statement. Okay? So these are kind of the mandatory documents which a limited company need to prepare in India. Okay? According to section 128 as well as format that is generally given in section 129. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. As per the Companies Act 2013, which statement is mandatory for all the listed companies? Now we all know the answer. So cash flow is mandatory. Trial balance fund. So what will be our correct answer? Cash flow statement will be right answer. So profit and loss account, balance sheet, and cash flow statement. Next one. Money received against a share warrants comes under which heading of balance sheet? So money received against a share warrants. It's a company who issue shares and they receive some premium or the share warrants. So that received money will be part of which heading of balance sheet. So what will be your correct answer? Current asset, non-current asset, current liabilities, and it is part of the shareholders funds. So our balance sheet is something like this. Let's say liability, we have assets. In this particular case, liabilities are further divided outside liability and equity. So under equity, shareholders fund. So this will belongs to this particular portion. Okay. Next one. Okay. So now this is very important for all of you guys because next 5 to 10 question we are going to solve based on this particular chart itself. Basically, this is the format of balance sheet. Okay. So now listen very carefully because you are definitely going to face one or two question based on this particular one. ठीक है, तो अब यहाँ पे format. ठीक है, so form of balance sheet as given in part 1 of schedule 3 of Companies Act 13. So balance sheet format is basically balance sheet part 1. So name of the company, balance sheet as at this name. So first we have equity and liabilities. Okay, so it start with equity and liabilities. सबसे पहले we have shareholders funds. So the very first heading is shareholders fund, which include share capital, reserve and surplus, money received against share warrants. Okay, so जो हमारा question भी था आपका this, so share, so it is part of your equity itself. ठीक है, तो यहाँ पे आपका share capital, the money contributed by owners or through the equity shares and all. Then we have reserve and surplus. We made some sort of profit, and that is we have kept that particular one. That means the balance transfer from the profit and loss account, credit balance, money received against share warrants. Second one is share application money pending for allotment. So like let's say our company is going through that IPO process. If there is any money which is pending for allotment, so that will be part of this.
नॉन करंट लाइबिलिटीज मीन्स लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन बेसिकली, ठीक है, विच आर पेबल मोर देन 1 years, लाइक बॉन्ड्स और आपका लॉन्ग टर्म term loans and also they generally comes under this, like long term borrowing, deferred tax liability, other take long term liabilities, long term provisions. So many time you'll get questions like they'll simply give you questions like money received against share warrants comes under which head, और आपका रिजर्व इन सरप्लस कम्स अंडर विच हेड. तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको रिवाइज करना होगा. करंट लाइबिलिटीज मींस दीज आर द ऑब्लिगेशन विच आर पेबल विद इन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, 1 साल के अंदर आपका जिनका पेमेंट होना है, ठीक है. तो जैसे आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, आपका अदर करंट लाइबिलिटीज, आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, सो टोटल, ठीक है. तो ये आपका लाइबिलिटी साइड, दिस इज आल्सो नोन एज sources of funds. Okay, so for a company these are the sources of funds. Okay, understood. यही चीज ना बहुत डिटेल में, आपको उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दीज पर्टिकुलर थिंग्स. आई विल मेक श्योर कि हाँ प्रैक्टिस के थ्रू आप उनको मतलब क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे. अब हम आते हैं एसेट साइड में, ठीक है, अनदर साइड. सो एसेट साइड आपका सेकंड पार्ट. फर्स्ट वन वी हैव नॉन करंट एसेट. व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स? सो दीज आर basically the benefits, these are the assets which have long term benefits. Okay, like let's say we acquire a machine whose useful life is supposed at 10 years, so that machine will give benefit to that company for next 10 years, so that will be part of asset side, and that is a non current asset. Okay, let's say आपका some goodwill, patent, copyrights, or property, plants, equipments, these all are non-current asset. Current asset side we have like cash in hand, marketable securities, trade receivables, bills receivables, and all these are generally. So we have already discussed these particular one with our balance sheet equation. So now I hope you guys are finding these particular thing a bit easier. ठीक है, तो आसान समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो फिक्स एसेट आपका, सो आपका जैसे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, गुडविल, इक्विपमेंट्स एंड ऑल, ठीक है. इंटेंजिबल एसेट्स आपका, ठीक है, प्रॉपर्टी आपका सॉरी प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब आपका इंटेंजिबल विच वी कांट टच, ठीक है. सो जैसे आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड ऑल. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका, ठीक है. इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो रहते हैं वो, ठीक है. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स. डेफर्ड टैक्स एसेट आपका, ठीक है. डेफर्ड टैक्स क्या होता है, ये हम मॉड्यूल डी में पढ़ेंगे दो, ठीक है. सो डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है. जैसे लेट्स से प्रीवियस ईयर टैक्स लाइबिलिटी, देखो क्या होता है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से हम लोग आपका टैक्सेस जो कैलकुलेशन होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम लोग, या इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से हम कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. तो दोनों में अलग अलग मेथड्स है, कई बार इनकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है. सो लेट्स से योर टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर वाज 10 करोड़ and the tax paid by the company was 12 crore, तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो that 2 crores will be part of this particular one. Deferred tax assets, अगर आपका 10 करोड़ था liability and you have paid only 9 crore, so the 1 crore will be your liability in that case, ठीक है. अगर आपका जो, तो आप उस केस में आप उसको कहां पे रखोगे, deferred tax liability आपका वो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपका आ जाएगा. समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो एसेट साइड में है, मींस वी हैव गिवन टू समवन एल्स, ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है. सो देन वी हैव करंट एसेट. करंट एसेट में आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स which is convert like ready to liquidate and all, ठीक है. इन्वेंट्रीज आपका स्टॉक इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स आपका बिल्स रिसीवेबल्स, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस टू अदर पार्टीज, अदर करंट एसेट, तो टोटल आपका, ठीक है. सो इस तरीके से आपका जो बैलेंस शीट है वो फॉर्म होगा, ठीक है. तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी आपका मतलब लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है. इस तरीके से हमारा ये बैलेंस शीट फॉर्म होता है, ठीक है. सो यहाँ पे आपका इक्विटी, देन वी हैव इक्विटी फर्स्ट, देन लाइबिलिटी, देन आपका एसेट. एसेट में नॉन करंट एंड करंट, कई बार ना ये भी पूछा जाता है कि आपका जो करंट एसेट है, ये पूछा गया था मतलब लास्ट ईयर, ठीक है, कि आपका बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड है उसमें पहले करंट एसेट आता है या नॉन करंट आता है, तो नॉन करंट आता है. इसमें आपका जो ये फॉर्मेट आपका, इसमें आपका इक्विटी को हम लोग पहले आपका, देन आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, देन आपका करंट लाइबिलिटीज, ठीक है. एंड व्हाट कम्स अंडर विच हेड, जैसे इन्वेंट्रीज इज पार्ट ऑफ विच हेड ऑफ बैलेंस शीट, तो आपको याद रखना इट इज नॉन करंट. ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू वो आपको टेस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों.
अब आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका क्या क्या चीजें आती है, जैसे कैपिटल रिजर्व, रिडम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, सरप्लस, ये सारी चीजें, ठीक है। क्लासिफिक आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अभी हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो इस तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। So debenture interest payable is classified under which category of the balance sheet, ठीक है। So debenture interest payable, ठीक है। So हमने कोई debentures issue किए थे, debentures are kind of bonds, ठीक है, bonds की तरह ही हम लोग उनको आपका देते हैं, but the major difference between bonds and debenture is bonds is usually without collateral but these are with collateral, right? So ये आपका रहेगा, तो इसमें आप इनको कहां पे रखोगे, ठीक है। सो ये कौन से बैलेंस शीट के कौन से हेड में रहेगा, तो इंटरेस्ट पेबल है, तो इट विल बी पार्ट ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो दीज आर करंट लाइबिलिटीज ऑन द फर्म, ठीक है, तो क्योंकि इस अकाउंटिंग ईयर में आपको उनको पे करना होगा। सो डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड हेंस क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटीज। अगला क्वेश्चन, एज पर शेड्यूल 3, जिसके हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, द कंपनीज एट 13 which of the following is classified under other current liabilities, तो इनमें से कौन सा अदर करंट लाइबिलिटीज के रूप में आपका जाना जाएगा, ठीक है। सो ट्रेड पेबल्स, आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड आपका डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। तो इसको हम कहां रखते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज, जैसे ट्रेड पेबल्स आपका करंट लाइबिलिटी, ठीक है। आपका इसके प्रोविजन फॉर टैक्सेस आपका, ठीक है, ये डेफर्ड है, तो आपका किस में आ जाएगा, नॉन आपका करंट के अंदर, ठीक है। सो नॉन करंट के अंदर डिवेंचर्स, और करंट के अंदर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपका अगेन। सो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ थिंग कि वो आपका डिफाइन नहीं है, अगर वो क्लेम आता है तभी हो जाएगा इन ऑल, ठीक है। So other current liabilities because they are payable to shareholders and typically settle within a short period, ठीक है। Next one, under which accounting standard should the format and presentation of balance sheet and profit and loss account be followed, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है। सो बेसिकली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कंपनीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एज वेल एज Indian Accounting Standard 1, so companies they have to prepare these 3 documents और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका ये जो पूरा जर्नी चलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी हो या अदर्स हो, हर जगह सेम है आज के डेट में, पहले होता था जनवरी टू दिसंबर बट नाउ इट इज लाइक सिमिलर दिस, ठीक है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। सो क्या है आपका फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ पीरियड एंडिंग, एंडिंग आपका है तो 31 मार्च आपका होगा, 31st day of March every year. So C will be correct answer for this particular one. ठीक है? So 1st April to 31st March. Earlier it was 1st to 1st January to 31st December, but now it is changed. तो अभी आपका यही फॉलो होता है, ठीक है। Trader purchase 70,000 rupees, purchase goods 70,000 rupees, sold worth 80,000 and incurred an expense of 10,000. Calculate gross profit and net profit. बहुत आसान से है, ठीक है। So how we calculate gross profit? I hope सबको याद होगा, ठीक है। So gross profit is equal to आपका क्या होता है, नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। तो इस केस में हमारा नेट सेल्स इज 80,000, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका, परचेज जो हमारा कॉस्ट है सिर्फ वही है 70,000। सो आर ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच, 10,000। हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट आपका, इसके हिसाब से अगर हम लोग लेके चलें तो माइनस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको दिए गए हैं। सो इट इज 10,000 माइनस 10,000, ठीक है, विच इज 0, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट इज 0 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 10,000, ठीक है। अगर हम वैसे जाते हैं तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग आपका, इट इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम लाइक डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, आपका इंटरेस्ट रिसीव माइनस अदर इनकम, other expenses like operating expenses or indirect expenses in relation with that particular one, ठीक है। So gross profit 10,000, net profit 0. So A will be correct answer for this particular one, as simple as that, ठीक है। Next one,
A company has total asset 1 lakh and total liability 40,000. What is company's net worth? तो क्या होता है इक्वेशन आपका, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो अब नेटवर्थ हम लोग कैसे निकालते हैं, नेटवर्थ इज इक्वल टू आपका मतलब शेयर होल्डर्स मनी, ठीक है। सो आपका क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सो इट इज आपका कितना है 1,40,000, तो 60,000 विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो बहुत आसानी से सॉल्व आपका हो जाएगा, क्लियर है। So asset, total asset minus total liabilities, 60,000 that belongs to the owners, promoters of that particular company. Next one, money received against share warrants comes under, तो कौन से हेड में आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आपका आएगा, ठीक है। Account which is prepared to show the distribution of profit and loss among the partners or partners capital, very important question, ठीक है। तो ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ओके। सो लाइक दिस इज द वन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, देन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स, जो हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था या जो ग्रॉस लॉस था उसको हम लेके आए किसमें, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, with this account we will get to know about the net profit or losses, ठीक है। तो अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है, ठीक है। देन जो भी प्रॉफिट या लॉस है वी विल ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर वन। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट, लेट्स से देयर इज अ कंपनी हु गेन 5 crore rupees प्रॉफिट, तो जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना वी जनरली प्रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड, or after adjusting all the cost of this particular one including taxes and all, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द शेयर होल्डर्स, और हाउ मच मनी वी आर ट्रांसफरिंग टू बैलेंस शीट एंड ऑल, सो दैट अकाउंट इज जनरली नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो वो प्रॉफिट है या लॉस, उसका डिविजन कैसे हो रहा है, दैट इज द वन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। So profit and loss appropriation account is a nominal account which follow, nominal account क्या होता है, debit all expenses and losses, credit all income and gain, ठीक है। The account is prepared after profit and loss account and shows how the profit after all adjustment is distributed among the partners of a partnership firm. The appropriation is net profit is done after considering all relevant adjustments such as interest on partners capital, interest on drawing, partners salaries and commission etc, right। चलो आगे बढ़ते हैं। So consider the following data, calculate gross profit, निकल जाएगा सबसे, ठीक है। तो how like gross sale is 45 50, sales written आपका 50, direct cost is 10, ठीक है। So how we calculate gross profit, gross profit is equal to नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ यू कैलकुलेट नेट सेल्स, नेट सेल इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस आपका सेल्स रिटर्न, ठीक है। हाउ यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सो इट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला। तो अब आपका यहाँ पे जो नेट सेल्स है वो कितना 4500, ठीक है। व्हाई इट इज 4500, this minus this, ठीक है। and cost of goods sold is 2000 crores, so what will be your answer, so कितना 4500 minus 2000, so it is equal to 2500 crores, so 2500 crore rupees is your आपका क्या है 25 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। so 2500 crores will be right answer for this particular one, right। next one, which of the following financial statement will show gross losses, ठीक है। तो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ग्रॉस लॉस बताता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सो बैलेंस शीट विच इज द पोजीशन स्टेटमेंट, इट इज आल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, विच इज आपका एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, दिस लायबिलिटी इज आल्सो नोन एज आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शोज नेट प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है, ये इससे हमें क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट और लॉसेस। ट्रेडिंग अकाउंट विच जनरली शोज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन था। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। सो ड्यूरिंग like what was the cash balance at the beginning of the year or end of the year, so that is the one, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट वन। ABC company, a retail store, purchase inventory worth rupees 50,000, inventory 50,000 on credit from XYZ supplier. The transaction is recorded as inventory to accounts payable. सही है. What is the effect of transaction on ABC company's assets and liabilities? तो हमने बैलेंस शीट इक्वेशन में ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, ठीक है. So they generally purchase inventory on credit, ठीक है. So what will be the impact? Their liability will increase by कितना अमाउंट से 50,000 से, ठीक है. 50,000 आपका विच इज बिल्स पेबल्स, ठीक है. दूसरी तरफ आपका देयर एसेट्स विल इंक्रीज बाय अगेन 50,000 एज अ इन्वेंटरी, ठीक है. आपका जो गुड्स उनके पास आए हैं. सो बोथ asset and liability both will increase by 50,000. Increase asset, increase liability. Why so? Because we know the concept कि like business entity concept, like from the taken liability itself we generally create the asset. So liability was 50,000, that means your asset will also increase by 50,000. Which act give the format of balance sheet and profit and loss account in which the bank account should be prepared? तो हम इसको अभी दोबारा से भी पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी में, बट ठीक है जल्दी से थोड़ा समझ भी लेते हैं, ठीक है. आई होप यू रिमेंबर दैट वन, ठीक है. So section banking company in India, they have to prepare their final accounts according to section 29 of बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है. आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा. सो वी हैव टू फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3. वी हैव टू फॉर्मेट फॉर्म ए, दिस इज कॉल्ड फॉर्म ए, सो विच इज परफॉर्मा बैलेंस शीट, ठीक है. सो बैलेंस शीट वेयर वी हैव 6 शेड्यूल 12 शेड्यूल्स, ठीक है. तो जहां पे 12 शेड्यूल हैं. दूसरा आपका फॉर्म बी विच इज जनरली अ फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर वी हैव 6 शेड्यूल, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे 12 शेड्यूल आपका रिलेटेड टू एसेट्स, इट स्टार्ट विद एसेट्स, ठीक है. देन आपका यहाँ पे सॉरी मतलब 12 शेड्यूल में आपका जैसे 5 आपका लाइबिलिटीज में, ठीक है. देन आपका 7 एसेट से रिलेटेड, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 13 to 17, 18 नंबर पे क्या आता है आपका नोट टू अकाउंट. सो टोटल हमारे पास ये. तो इनका जो फॉर्मेट, कोई भी बैंकिंग कंपनी कैसे अपने अकाउंट्स को शो करेगी, कैसे अपने फाइनल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है. Which assets which remain NPA for a period not exceeding 12 months is known as okay, it is generally known as substandard asset. वैसे ये क्वेश्चन ना आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी के ही हैं, ठीक है. गलती से यहाँ पे आ गई. Asset which has remained NPA for a period not exceeding 12 months. I hope आपको याद होगा ना. मैं जल्दी से आपको बता दूं. First we have a special mention account, ठीक है. SMAs. As per RBI we have 3 categories of SMA. First one is SMA 0, कहाँ से फर्स्ट से 30th डे, ठीक है. देन वी हैव SMA 1 आपका 31st to 60th डे. देन वी हैव SMA 2 आपका 61st to 90th डे, ठीक है. तो पहला जो आपका जैसे किसी को आपका EMI पे करना था, अगर उसने डिफॉल्ट कर लिया तो पहला जो कैटेगराइजेशन होगा फॉर फर्स्ट 90 डेज दैट विल बी कैटेगराइज एज SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है. आफ्टर दैट if it is like अगर 90 days से ज्यादा हो गया, so this asset will categorize as a non performing asset, NPA, ठीक है. So now for NPA we have 3 major categorization, ठीक है. तो 3 प्रकार की कैटेगराइजेशन है. सबस्टैंडर्ड एसेट, ठीक है. सबस्टैंडर्ड एसेट अप टू 12 मंथ्स, ठीक है. अप टू 12 मंथ्स, ठीक है. 12 महीने तक आपका, ठीक है. जब वो आपका एनपीए हुआ है वहां से लेके 12 महीने तक यहाँ पे, ठीक है. देन आपका डाउटफुल एसेट, ठीक है. डाउटफुल एसेट, ठीक है. सो ये आपका मतलब 1 साल यहाँ हो गया, 2 to 3 years यहाँ पे होगा. एंड देन आपका लॉस एसेट आपका मोर देन 48 मंथ्स, ठीक है. सो 48 मंथ्स, ठीक है. तो 24 महीने यहाँ पे रहेगा डाउटफुल में, उसके बाद 48 मंथ्स हो जाएगा इंक्लूडिंग दिस 12 मंथ्स, दैट विल बी कैटेगराइज एज डाउटफुल लॉस एसेट, ठीक है. तो इस तरीके से जो डिविजन आपको देखने के लिए मिलेगा, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल. इसके लिए जो प्रोविजनिंग है वो कैसे होती है उसको भी समझेंगे अपने आने वाले क्लास में, ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है. तो मैंने आपको सब बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है. सो हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और रेशियो, ठीक है. सो इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है. नेट सेल्स
इनटू 100, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अगर आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, सब जगह सेम रहेगा। तो अब पहले इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारा सेल्स कितना है 1,50,000, 1.50 लाख माइनस 40,000, ठीक है, सो इट इज 1.10 lakh. So gross profit is 1.10 lakh, 1.10 lakh डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स कितनी है आपका 1.50 lakh इनटू 100। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके आसपास हमेशा, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय 1.5 into 100, so it is 73.333. So 73.33, that means option D will be correct answer. So 73.33% आपका है, ठीक है। सो हमारा जो क्लोजेस्ट है दैट इज डी आपका, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। कंप्लीटली फॉर्मूला ड्रिवन, हमने इसको बहुत बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अंडर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल रेवेन्यू इज सम ऑफ। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे निकालते हैं, मतलब हाउ यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस आपका इनडायरेक्ट अदर इनकम, अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसने यहाँ पे ना जो आपको पूछा है, उसने क्या पूछा है, द टोटल रेवेन्यू इज, तो वो क्या पूछ रहा है आपको, सिर्फ ये पूछ रहा है, ठीक है, वो आपको फॉर्मूला नहीं पूछ रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, ठीक है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, पहला ही सही होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजें आपका, ठीक है, जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को उसने थोड़ा सा आपसे पूछ लिया। अब थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लेते हैं। सॉरी गाइस। तो क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट, ये, ठीक है। सो जैसे इसमें पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, तो ये आपको कहां से मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। सो जो आप ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए थे वहां से आपके पास आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। देन आपका अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम अगर कुछ है, फिर ये टोटल, दोनों का टोटल आपका, ठीक है। अदर इनकम में क्या आता है, जैसे डिविडेंड रिसीव है, कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है। सो दीज आर लाइक इनकम अदर देन ऑपरेशंस, ठीक है, जो हमारे बाय सेल है, मतलब सेल परचेज है, उसके अलावा, मतलब ऑपरेशन इज लाइक जो डे टू डे बेसिस एक्टिविटीज हो, वो जनरली ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम अकाउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो अदर इनकम आपकी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, उनमें ये आपका तो टोटल आपका, ठीक है। देन आपका एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये तो रहेंगे आपका कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, हमने समझा था, फॉर्मेट देखा था। अब आते हैं डेबिट साइड में, ठीक, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना हो के आपका लॉस है, ठीक है, अगर ग्रॉस लॉस है तो वो यहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। सो अब इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, आपका इन्वेंट्रीज दिस। तो देखो ये फॉर्मेट कैसा आपका बना हुआ है, पूरा टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, देन आपका करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन, टैक्स एक्सपेंसेस फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर्स एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो आपका जर्नी जिसमें आपका रहने वाला है, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो accounts which is prepared to show the distribution of profit and loss among the partners are known as, तो ये हमने डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of non-operating expense, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट, आपका नॉन ऑपरेटिंग इज लाइक बेसिकली इनडायरेक्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रीशिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। लॉस ऑन सेल, सॉरी, डेप्रीशिएशन विल पार्ट ऑफ दिस वन, सॉरी, डेप्रीशिएशन आपका हम लोग इसको उसी में रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है।
सो यहाँ अगर ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सैलरीज, हाँ, सो सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, यस, हाँ. So loss on sale of fixed asset is classified as a non-operating expense because it does not relate to the core of this. अब इसमें भी ना अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते तो इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स, हाँ, सारे उसी उसमें, ठीक है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपेयर इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनमें से कौन सा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं होगा. डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है. प्रपोज डिविडेंड आपका, इंटरेस्ट इनकम एंड आपका कमीशन रिसीव, ठीक है. तो क्या है आपका नॉट अपेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रपोज डिविडेंड आपका, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड इज रिकॉर्डेड इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज शोन इन द स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी और नोट टू अकाउंट्स आपका, ठीक है. नेक्स्ट वन, which of the following item is considered an indirect expense in profit and loss account. Indirect expense, ठीक है. डायरेक्ट जैसे हम ये मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसमें रॉ मटेरियल, फ्रेट इनवर्ड, आपका जो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जैसे जो लेबर इसमें लगे हों वो सब. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या आएगा, जैसे जो इसको मार्केट में बेच रहे हैं उनकी सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फ्रेट आउटवर्ड्स, और इसके अलावा जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड ऑल दीज वन, ठीक है. सो वेजेस आपका ये आपका डायरेक्ट है. ऑफिस रेंट आपका raw material, direct labor. So what will be your answer? This is administrative expense. So this is accounted as indirect expense. So B will be correct answer for this particular one. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Dividend income, net gain losses or the sale of investment, other non-operating income. So they generally comes under which head? कौन से हेड में आते हैं ये आपके अदर इनकम के अंदर, ठीक है. सो देखो डिविडेंड है, नेट गेन लॉसेस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपका, ठीक है. सो ये किस उसमें आएंगे आपका इन अदर इनकम के अंदर, ठीक है. और हमने उसका डिस्कशन ऑपरेट रेवेन्यू आपका रेवेन्यू इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस पहला, दूसरा अदर इनकम के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है. सपोज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 200 करोड़. एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस इज 200 करोड़. ओपनिंग स्टॉक इज 20, क्लोजिंग स्टॉक इज 40. सो यू हैव टू कैलकुलेट परचेज. निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूला के साथ. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो हमारे केस में क्या है आपका 200 करोड़ इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 20, आपका प्लस परचेज हमें निकालना है माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका 40, ठीक है. तो अगर आप परचेज को इधर लेके आओगे तो 220. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? 220 करोड़ विल बी राइट आंसर. तो फॉर्मूला ड्रिवन आपका, ठीक है, जिसको आप इनको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक इज 19,500, डायरेक्ट वेजेस 13,800, परचेज आपका 50,700, इंटरेस्ट ऑन लोन दिस, क्लोजिंग स्टॉक इज दिस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब यहाँ पे उसने आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला है. बहुत आसान है, ठीक है. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमने क्या समझा था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है इसमें आपका, ठीक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो भी ऐड करने पड़ेंगे जो इसमें दिए हैं अलग से, वेजेस, ठीक है, वेज आपका जो है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. तो आपको क्या करना है? दिस प्लस दिस, और इसको इंटरेस्ट ऑन लोन को अवॉइड करना होगा. देयर इज नो यूज ऑफ दिस, माइनस दिस. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? एक मिनट कर ले, चलो देख लेते हैं. बेसिक कैलकुलेशन अराउंड 50,000 के आसपास आना चाहिए. हाँ 50,000 ही एग्जैक्ट एक्चुअली आपका, ठीक है. तो इन सबका टोटल -10, ठीक है, सिंपल सा जो आपका प्लस माइनस था, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, दिस वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया. सॉरी, इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, ठीक है. Which of the following statement accurately describe the purpose and characteristics of sinking funds, ठीक है, in a financial management? So what is sinking fund? Sinking funds क्या होता है? Let's say अगर हमने let's say there is a company who raised 500 crores through the debt, मतलब bonds के थ्रू, ठीक है. इन्होंने आपका 500 करोड़ का डेट लिया है किसके थ्रू? बॉन्ड्स के थ्रू. दैट मीन्स लेट्स से द मेच्योरिटी ऑफ दिस बॉन्ड इज 10 इयर्स, ठीक है, 10 साल की इसकी मेच्योरिटी है. तो इसका मतलब ये है कि 10 साल के बाद दे हैव टू रीपे 500 करोड़ प्लस इंटरेस्ट आपका, ठीक है. अब अगर ये अभी से प्लान नहीं करेगी कि
मतलब अगर वेट, अब इन्होंने 500 करोड़ लिया, सब खर्च कर दिया और इसके लिए इन्होंने कोई प्लान नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर दे विल बी इन ट्रबल कि आपको 500 करोड़ प्लस जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। तो जैसे आप इसको एक और तरीके से समझो प्रॉपर्टीज के केस में, ठीक है, जैसे कोई सोसाइटी डेवलप होती है ना, लेट्स से देयर इज अ सोसाइटी इन 50 एकर्स, 50 एकर्स में आपका सोसाइटी बनी जिसमें आपका 3000 घर बनाए गए, ठीक है। अब ये जो एरिया डेवलप हुआ है ना, इसका एक यूजफुल लाइफ है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम they have to demolish this particular one and let's say 100 year is the आपका useful life of this particular property, इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो आपका 100 साल है, ठीक है। अब 100 साल के बाद हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर से नया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब दो तरीके थे, पहला या तो हम मतलब तोड़ देंगे, फिर बोलेंगे जो ओनर्स हैं आप पैसा दो अपने हिसाब से बनाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमने क्या किया, जब हमने ये फ्लैट इनको बेचे तो हमने इनसे 5 लाख रुपए का सिंकिंग फंड लिया, ठीक है, व्हाट कंपनीज जनरली डू। तो इन्होंने ये 5 लाख रुपए का सिंकिंग फंड इनसे लिया और इसको आपका डिपॉजिट कर 5-5 लाख रुपए सबसे लिया, एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा कॉर्पस तैयार हुआ, ठीक है। उसको हमने किसी बैंक के पास आपका जमा कर दिया फॉर 100 ईयर्स, 100 साल के लिए। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशन किया कि इफ वी विल रीबिल्ड दिस पर्टिकुलर वन आफ्टर 100 ईयर्स, सो वी विल हैव सफिशिएंट फंड इन आवर हैंड, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब आसानी से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो जो होम बायर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट इज द वन। वैसे ही यहाँ पे भी रीपेमेंट, ठीक है। तो सिंकिंग फंड्स आर एक्यूमुलेटेड टू मीट दी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, नहीं शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। Sinking funds are reserved set aside to finance expansion project and strategic. No, sinking funds are specifically earmarked investment that are accumulated for purpose of redeeming long-term debt or replace the fixed asset. ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर डिफाइंड टू बी मेड फॉर अ बैलेंस शीट इन बैंकिंग कंपनी फॉर्म ए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कितने शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल आपका होते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसको देख लीजिए। ये ना हम आपका जो अगले का मतलब नेक्स्ट सेशन विल बी बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, योर यूनिट नंबर 16, यूनिट नंबर 17 इज फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे ये सारे हेड हम इनको आपका डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको अभी ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आप फेमिलियर हो जाओ, आपको ये धीरे धीरे चीजें याद होना शुरू हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक बैंकिंग कंपनी इन इंडिया दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 29, ठीक है। सो इन सेक्शन 29 ऑफ बीआर एक्ट 1949 आरबीआई हैव प्रोवाइडेड फॉर्मेट, कि आरबीआई ने बोला कि हाँ लाइक दिस इज द फॉर्मेट एंड यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। सो फॉर्म ए इज बैलेंस शीट, फॉर्म बी इज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फॉर्म ए आपका क्या कहता है, बैलेंस शीट। जैसे आपका थर्ड शेड्यूल, ये भी जैसे कंपनीज अकाउंट में भी थर्ड शेड्यूल ही है कंपनीज एक्ट का, यहाँ पे भी थर्ड है तो आसान हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24 लेट्स से। तो पहले आपका कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जैसे आपका कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, डिपॉजिट, बोरोविंग, अदर लाइबिलिटीज, इन सब का टोटल 5 शेड्यूल, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, ठीक है। एसेट्स आपका cash and balances with RBI, balance with bank and money at call and short notice, investment, asset advances, fixed assets, other asset, goodwill on consolidation, then आपका contingent liabilities, 12 schedules, ठीक है। तो पहले 12 शेड्यूल आपका टोटल 18 शेड्यूल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से आपका 5 बैलेंस शीट 12 शेड्यूल में से 5 शेड्यूल आपका कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, 7 शेड्यूल आपका किसके लिए, एसेट्स के लिए, ठीक है। बहुत बार पूछे जाएंगे ऐसे आपको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका रिमेनिंग आपका जो 6 शेड्यूल है इंक्लूडिंग नोट टू अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका इट विल स्टार्ट विद इनकम, ठीक है, आपका जिसमें दो तरीके, बैंकों की इनकम कैसे होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है और अदर इनकम होती है। 13 एंड 14 एक्सपेंडिचर, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं कस्टमर को, अदर ऑपरेटिंग इनकम आपका होगी, ठीक है, एक्सपेंसेस हो गए, सॉरी। प्रॉफिट फिर आपका 17 में टोटल प्रॉफिट आपका इस तरीके से, देन अप्रोप्रिएशन। इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 17 है, 18 कहाँ गया, 18 इज आपका नोट टू अकाउंट्स, ठीक है। तो 18 में क्या आएगा आपका नोट टू अकाउंट्स। तो जब हम आएंगे इस यूनिट पे काफी डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस शोन अंडर विच शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, शेड्यूल 2। कैसे, शेड्यूल 2 में आपका ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस, अभी हमने देखा था ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वहां पे एग्जामिनेशंस में आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगला
विच एक्ट गवर्न द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑल फॉर अ बैंकिंग कंपनी। तो क्या हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 29, ठीक है। In case of a company under liquidation, the order of payment to creditors follows in sequence। अगर कोई कंपनी liquidation में जा रही है या वो वाइंड अप हो रही है, तो जब वो अपनी एसेट्स को बेच करके अपनी लाइबिलिटीज आपका पे ऑफ कर रही है, तो जो पे ऑफ करने का मतलब सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा, फिर किसको मिलेगा, फिर किसको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डेट आपका, फिर शेयर्स में आएंगे तो प्रीफरेंस शेयर्स, देन इक्विटी शेयर्स, ऐसे, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, बिल्कुल सही, पहला ही, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, जिन्होंने आपका लोन दे रखा है, ठीक है। देन आपका अनसिक्योर्ड, देन आपका शेयर होल्डर्स, पहला सीक्वेंस सही है। शेयर होल्डर्स नो, शेयर होल्डर से नहीं होगा, अनसिक्योर्ड से नहीं होगा, डिविडेंड, तो ए ही आपका इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। So we will start with this particular one. Next one, guys. Okay, this is it. So this is all about your company account. Second, ठीक है। I hope you got these particular thing clearly. समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। So this is my Telegram group. आप इसको join कर सकते हैं and you can ping me here if you need any help from my side or any other side, ठीक है। तो जो भी आपका बेस्ट बनेगा, I'll definitely try my best, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अब आपके पास डेट्स भी हैं आपके एग्जामिनेशन के, ठीक है। और लाइक स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग लिटिल बिट। देखो कई बार क्या होता है ना, इतना सारा सामने रखा होता है, कहाँ से शुरू करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। आप एक चीज से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद एएफएम एंड आईएएन आईएफएस, ठीक है। क्योंकि एएफएम क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज 10th एंड 11th ऑफ मे, ठीक है, सैटरडे संडे, बैक टू बैक 2 days 2 पेपर, so it is hard to manage both the paper because PPB is very lengthy and AFM is kind of conceptual things and all, ठीक है। तो एक आपको AFM उठाना है यहाँ से, दूसरा आपका INIFS की जो मॉड्यूल वाइज कंपाइलेशन वो प्रोवाइड कर देंगे, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, हम स्टार्ट डिलीवरिंग यूनिट वाइज एमसीक्यूज सेम एज फॉर आपका जैसे हम लोग जेआईबी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा करके इसी स्पीड में, देखो 2 हफ्ते पहले हमने स्टार्ट किया था, आज हम लोग आपका यूनिट नंबर 16 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और ऐसे एक दिन आएगा 35 खत्म हो जाएंगे, तो या तो एक होगा कि आप देख रहे होगे हाँ कि सर डाल ही रहे हैं कंटेंट अभी, तो एक इस वाले थॉट में होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ में चलते हैं, तो जो साथ में चलेंगे ना वो साथ में पूरा भी कर लेंगे, और जो लोग बैठे रहेंगे या फिर कंटेंट आ ही रहा है तो वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, थोड़ा सा टाइम निकले, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, like just start with one subject at least, ठीक है। so if you are facing some challenges and all, you can tell us। अब आप एक साथ सारी challenges को भी लेके आएंगे तो भी दिक्कत आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे आपका, ठीक है। एंड कल के जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एंड आई विल टेक योर अराउंड 30 minutes और 35 minutes हार्ड टू हार्ड, एंड आई विल मेक श्योर कि विद इन 35 minutes यू विल बी एबल टू स्कोर दैट 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर बार पूछा जाता है, कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन है, वो सब आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।